One second. Please sit down. Take your seat. Be comfortable. You are Paridhi Vidisha. A very interesting name. What is meant by both the part of your name, Paridhi, and what is Vidisha? So Paridhi is a Hindi word. In mathematics, it is called circumference, the perimeter of a circle. And Vidisha is a capital city in Madhya Pradesh. Capital of Madhya No, Pradesh. not the capital of Madhya Pradesh, but it's a city in Madhya Pradesh. Okay. Any history of when you see some city you are calling it some Vidisha old city? What do you mean by that? Yes, sir. Vidisha, you said is some place in Madhya Pradesh, some city in Madhya Pradesh. Actually, sir, my name Paridhi Vidisha is it's limited. It's you can travel the world it's a globe. It's like a globe kind of meaning you can travel and you can come back to the same place. Good, Paridhi. And how do you find the circumference of a circle? How can I find you mathematically? Okay, What is the formula for that? Circumference of a circle is 2 pi r. Okay, good. Now let's come. That was a simple introduction. Now you are working in assistant engineer in Budco. Yes, sir. Let me know why Bihar has failed in urbanization. We have good cities in Noida, all developed. Even Kolkata is a very popular city, good developed. But Bihar, Patna, we failed to develop a good city. What could be the reasons? Have you made an analysis? Sir, Patna is not failed in urbanization. We are seeing that its infrastructure has developed quite it has developed in last few years. Because when I am comparing it with 2010 until now, it's developed, drastic development has happened with respect to road infrastructure and with respect to other infrastructure abilities. It has developed a lot. Many new schemes have come up, water supply schemes, so providing tap water to every beneficiaries. So we can't say, sir, it's not developed in terms of infrastructure. And now you are trying to come to industry department. The same thing with Bihar industrialization. See, what are the major policy incentives of Bihar government to improve industrialization? Sir, Bihar startup policies is there. Then BIADA is working for Bihar Industrial Promotion Policy 2016. And then 2020 also that same policy has been revised. Then there are many policies running for this. And recently the central government has eased the business ease of living and ease of doing business by making 42 laws. It has decriminalized those laws because of which there was sluggish growth in the industry. Okay, now let me turn attention. We had this. You see, I recently just was looking at the news. Prime Minister Modi says from Paris Eiffel Tower we can do UPI. Soon we can start UPI. Yes, sir. What is this UPI? It is a unified payment interface. What does it mean? What does it do? So through it we can just do transactions with a mobile number, and we can do it anywhere. We don't need to carry cash. Its ease of availability has been improved through UPI. And you must have heard the word fintech. 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 Yes, sir. Financial technology. Yes, sir. What is it? What is its relevance for our rural economy? Financial technology relevance in global economy. Sorry, sir. Some major pillars of fintech in India, particularly helping rural technology. Can you elaborate? Sir, can I guess? Okay. Let me see. You must have something. You are a student and you are coming into. You must have the Indian economy. What I find, lot of praises is being done. Indian economy is growing. We are going to be a some billion-dollar economy. But my view is this is total bogus. Our unemployment is rising. Retail inflation also goes higher. Rural economy is now survived by free food grain scheme, etc. So soon the bubble is going to burst.
What is your view on Indian economy? Am I right? Indian economy is at currently in world it is fifth rank. Currently it is in terms of GDP we are at fifth in number, and we are having approx 33 lakh crore GDP, and unemployment is there, and in Bihar also unemployment is there. But it is Indian government is taking certain steps like Startup India, and it is giving certain incentives also. Like in Bihar also we see Udyami Yojana, Mahila Udyami Yojana, SC/ST Udyami Yojana, or in terms of Udyami Yojana, it is providing free incentives of up to 5 lakh rupees. They don't have to pay 5 lakh rupees, and the rest amount they will have to pay it without any interest for female Mahila Udyami Yojana and all. Like this, Bihar government and the central governments, many schemes are running regarding this to improve the situation of unemployment and poverty. And it is Indian government main focus is to become Atmanirbhar Bharat, to self-generate the employment opportunities so that people of India can benefit. Because in central government, the employment is limited, and with the growth of technology, somewhere or the other, humans are getting replaced by the machines. So, self-generation of the employment is, I feel that it is the best option which Indian government is focusing on. We are hearing the slogans also regarding this Atmanirbhar Bharat. We are trying to be self-reliant in any kind of technology, whether it be semiconductor or any sort of technology. India is trying to have FDI investments in various technologies and trying to become self-reliant in this field. Okay, Mr. Samant. विदिशा, आपने ग्रेजुएशन कब किया? 2016 में सर. 16 में क्या कर रही है तब से? Sir, currently I am in assistant engineer in Budapest. कब ज्वाइन की? In 2020. 4 साल क्या की? Sir, before that I was working in TCS. TCS में? Yes, sir. क्या करते थे? Sir, as a software analyst. सॉफ्टवेयर एनालिस्ट. क्या काम होता है इनका? So there I used to work in cloud computing, and initial our work was working on Meraki, where it was a networking tool where we had to search like our client locations were in US and all. We had to check whether their network was down or those issues we had to check, and we have to report to that client location server that yes, here is some issues because we are getting complaints and we had to solve it. Our purpose was to solve those complaints by communication and by checking the VPN connectivity. इस प्रोफेशन के लिए why do you think that you are most suitable person for this post? For project manager post, sir. So because I am already working in civil engineering, is doing civil engineering work as an assistant engineer, and there my role is a supervision kind of role. But here I am seeing that in project manager I will get a managerial kind of role. And so I'm liking this profession more than my current profession. कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई जूनियर हो और उसने आपके अथॉरिटी को चैलेंज किया हो? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ सर. ऐसा नहीं, आप ही जूनियर है या आपके नीचे भी कोई हो जो आपके अथॉरिटी को चैलेंज किया हो? नहीं, जूनियर सर. आप ही जूनियर. हाँ सर. अच्छा, ये बताइए कि ये फ्रीबीज क्या है? फ्रीबीज और आपका ओपिनियन क्या है उस पर? सर, फ्रीबीज गवर्नमेंट फ्रीबीज के नाम पर जैसे मोबाइल फोन्स वोटिंग के टाइम सर लोग जैसे मोबाइल फोन या कुछ पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स या इस तरह की या मनी बेनिफिट्स इलेक्शन के टाइम उन लोग प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि उनके जो वोट्स का नंबर बढ़े. तो प्रीवियस के रिगार्डिंग तो सर मेरी यही है कि अगर ये इलेक्शन सिस्टम को एक तरह से करप्ट कर रही है तो इसे एक लिमिटेड अमाउंट में है तो ठीक. फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सर, वेलफेयर स्कीम्स तो सबके लिए हैं
And freebies is mostly it is concentrated for जैसे कि दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कुछ अमाउंट में फ्री दिया गया लोगों को, तो उसको फ्रीबीज बोल दिया गया। तो आप मानती हैं क्या कि ये उसके इसमें आएगा या वेलफेयर स्कीम में आएगा वो? तो ये तो लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल बेनिफिट कर, ये एक तरह से वेलफेयर स्कीम है, क्योंकि मैं इसे वेलफेयर स्कीम्स में ही सर काउंट करूंगी। वेलफेयर स्कीम में Yes, sir. करेंगे आप। तो भगवंत वेलफेयर मान इकोनॉमी के सर बारे में भी- कुछ जानती है क्या? वेलफेयर इकोनॉमी सर जिसमें लार्जर पीपल का कंसर्न किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम बताइए जो इससे जुड़ा हुआ रिगार्डिंग, सर मैं नहीं जानती उसके रिगार्डिंग। है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप किसी ऑफिस में हैं और आपसे कोई गलती हो गई और उस गलती को आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका कॉस्ट ये हुआ कि आपको जॉब जो है वो छोड़ना पड़ गया, तो क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसा संभावना हो सकता है कि वो जॉब से आपको बाहर कर दे अगर आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेती हैं तो। सर अगर मेरी गलती हो, पहले तो मैं वैसा स्टेप ही नहीं उठाऊंगी कि नहीं, जैसे गलती हो गई, मान लीजिए गलती हो गई, सर अगर गलती हो गई तो हाँ मैं एक्सेप्ट करूंगी। अगर मेरी गलती है लेकिन तो उसका जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट ये है कि आपको जॉब से बाहर जाना होगा। हाँ सर, तो वो जब उसका जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको तो फॉलो करना ही है सर, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों ऐसा कीजिएगा? सर क्या अगर मेरी reason गलती है होगा? तो मुझे एक्सेप्ट करने में मुझे कोई हिचक नहीं नहीं, आप होनी चाहती चाहिए। हैं तो छिपा भी सकती हैं आप उसको, नहीं चाहे तो नहीं भी बताएं आप, किसी को नहीं सर, पता नहीं बट चल रहा है। अगर गलती अगर मैं वैसे करूँगी तो फिर और भी लोग वैसे ही करेंगे, वो एक सिस्टम फिर बन जाएंगे। तो मैं नहीं चाहूंगी कि वो इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपने एक्सेप्ट किया उसको क्या बोलते हैं? सर मैं नहीं चाह रही हूँ। पूछिए। अच्छा, आप तो गुडको में अभी जॉब कर रहे हैं ना? क्या है वहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल? सर अभी मैं वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट देख रही हूँ। गंगा जल परियोजना जो है, गंगा जल उद्भव योजना, ओके। तो गंगा जल को हमें हर लोगों तक पहुँचाना है, उसी का हम लोग प्रोजेक्ट देख रहे हैं अभी। गंगा पे एक प्रोजेक्ट बना है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है? वो प्रोजेक्ट में आपको उस वाटर को गया तक पहुंचाया गया है, ओके? उस रीजन में कुछ जो आपके साउथ के रीजन है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? गंगा उद्भव योजना। गंगा उद्गम योजना। गंगा उद्भव योजना। और कुछ नाम है उसका? सर घर घर जल का नल योजना साथ नीचे में भी। कुछ आप सुने हैं वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट? हाँ सर, वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर वाटर लिंकिंग ये क्या प्रोजेक्ट। है वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट? सर इसमें जैसे हम लोग के नॉर्थ बिहार में भी सर ये प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रही है जो फ्लड प्रोन एरियाज है, और साउथ बिहार हम लोग का ड्रॉट प्रोन एरियाज है। तो जब रेनी सीजन में वो फ्लड प्रोन हो जाती है, तो इसलिए वो जो वहाँ के रिवर्स को इंटरलिंक कर दिया था साउथ बिहार से, और जिसमें सीजनल रिवर्स होती हैं, ताकि जो वहाँ के जो फ्लडेड वाटर्स है वो यहाँ पर डाइवर्ट हो जाए और यहाँ पर ड्रॉट का सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए। इसीलिए ये वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट का काम हो रहा है। मान के चलिए पटना में बाढ़ आया, ठीक है, आप कैसे चेक करेंगे कि बाढ़ आ गया, और फिर आपके क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होंगे? सो वहाँ पर डीपीएस लगी दी है। पटना में जल जमाव की समस्या हर साल होती है, उसके लिए यहाँ पर डीपीएस स्टेशन 24/7 वर्क करती है। तो वहाँ पे उन लोग लेवल चेक कर लेते हैं, उसके बाद उस पर इमीडिएटली उसका इवैक्यूएशन, वहाँ पर मशीन इक्विपमेंट ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट रहती है, ऑल टाइम प्रेजेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर में आपका क्या जॉब प्रोफाइल होगा, पता है आपको? सर प्रोजेक्ट मैनेजर में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर मुझे काम करने का मौका क्या क्या काम करना है आपको? सर जो भी प्रोजेक्ट्स आएगी, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, ये सब के रिगार्डिंग। सपोज कीजिए आपको स्मार्ट सिटी दे दिया गया मैनेज करने के लिए, हाँ सर। लेकिन वो टोटली फेल है आपकी वजह से, मैं तो ये समझता हूँ। क्यों? आपको स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया, लेकिन 1 साल बाद वो प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल हो चुका है आपकी वजह से, आपका क्या रिप्लाई होगा? शोकॉज नोटिस आपके पास आया है।
सर मैं तो उस पर मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मैं उस काम को और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। अगर इन केस वो सो कॉज नोटिस आती है तो मैं उसमें और डबल कि मैं अपनी देखूँगी कि कहाँ मेरी शॉर्टकमिंग्स रही, उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। उस सो कॉज को मैं एक पॉजिटिवली लूँगी और उससे और मैं डबल उस पर एफर्ट दूँगी ताकि उस चीज़ को मैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ। अच्छा, ये आपका एक प्रोजेक्ट बना है, ठीक है, इथेनॉल प्रोजेक्ट, क्या है ये? सर इथेनॉल प्रोजेक्ट पेट्रोल और डीजल में उसको मिक्स करके ताकि उसके जो हम लोग की डीजल या पेट्रोल की जो राइजिंग प्राइसेस है उसको भी कम कर दिया जाए और फ्यूल पे जो हम लोग का डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे उसको भी रिड्यूस कर दिया जाए। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। C2H5OH, ठीक है। इस टाइल्स की साइज क्या है? इस टाइल की साइज सर 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। श्योर? नो 30 नहीं सर, 45 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, 40-45 सेंटीमीटर। आप सिविल इंजीनियर हैं, आप फुटको में काम भी कर रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, तो आप तो आंखों से देख के पता कर सकते हैं कि इसका साइज क्या होगा। हाँ सर, 45 सर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर सर है, 45 इंटू 45 सेंटीमीटर। ये डोर का, ये गेट का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? सर गेट का स्टैंडर्ड साइज 2 मीटर, 2 मीटर्स का सर हाइट और विथ सर उसका 1 मीटर, विथ 1 मीटर या आपका 0.8 मीटर भी रख सकते हैं। डोर का हाइट कितना? 1 मीटर? 2 मीटर सर। 2 मीटर, ठीक है। प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आप फाउंडेशन बनाएंगे? हाँ सर। फाउंडेशन टेस्टिंग बताइए जरा। सर सॉरी सर। फाउंडेशन टेस्टिंग? यस सर। लाइक कंक्रीट टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग? यस सर। क्या है ये? सर कंक्रीट टेस्टिंग, सर कंक्रीट टेस्टिंग हम लोग जैसे यूटीएम से करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कंप्रेशन टेस्टिंग करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि वो जैसे सर कंक्रीट के जो मॉल्ड्स हैं वो 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज पे उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो जितने दिन की वो, अगर वो 3 डेज के बाद हम लोग चेक करें जो कंक्रीट जो मॉल्ड कंक्रीट का जब काम हुआ है उसके 3 डेज बाद चेक करें उस मॉल्ड में यूज़ करके, तो उसकी स्ट्रेंथ अलग है। उस स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग हम लोग चेक करेंगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में कि वो स्ट्रेंथ अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो नहीं होती है सर तो फिर उसमें सर कुछ कहीं ना कहीं उसमें कुछ मटेरियल्स कंस्टिट्यूएंट्स की या तो ज़्यादा है, एक्सेस है, या तो कुछ कमी है। जब किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बनाने के लिए एमएसएमई का क्या योगदान है? सर एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि अभी मेजॉरिटी अभी बिहार में और इंडिया में भी एमएसएमई सेक्टर्स की ग्रोथ काफ़ी हो रही है। गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स है और बैंक की भी नाबार्ड या जैसे बहुत सारे बैंक्स भी इसके लिए काम कर रही है, लोन्स प्रोवाइड कर रही है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इससे सर ज़्यादातर लोग को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जो लोग ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आप उडको से आप इधर क्यों स्विच करना चाहते हैं? सर फर्स्ट रीजन है कि ये क्या आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो फिर क्यों स्विच करना चाहते हैं? और सर सेकंड रीजन है कि सुपरविजन रोल है सर को, जो मैं अभी प्रेजेंट रोल है मेरा, और इसमें एक मैनेजरियल रोल रहेगा, एक प्रोजेक्ट को हेड करने का रहेगा। तो इसमें मैं अपने हिसाब से उस प्रोजेक्ट को रन कर सकती हूँ। सो इसलिए मैं इस पोस्ट पे आने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है सर। ठीक है, यू कैन गो। ओके सर।